कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। Along with this agreement, we also have reached a consensus on the Double Contribution Convention. This will inject new energy into the service sectors of both countries, especially in technology and finance. It will promote ease of doing business, reduce from India's skilled talent. These agreements will enhance investments and generate new employment opportunities in both countries. Moreover, as agreements reached between two democracies and two of the world's major economies, they will lend support to global stability and global prosperity. फ्रेंड्स, अगले दशक में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 जारी किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप बनेगा। Friends, to give new momentum and energy to our comprehensive strategic partnership in the coming decade, today we are launching our Vision 2035. Vision 2035 is a roadmap that will form the basis of a strong, trustworthy, and ambitious partnership in the fields of technology, defense, climate, education, and people-to-people connect. डिफेंस और सिक्योरिटी में साझेदारी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया गया है। हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा। It is our commitment that from AI to critical minerals, semiconductors to cyber security, we shall create the future together. A defense industrial roadmap has also been drawn up for partnership in defense and security. Work will continue on strengthening our technology security initiative. It is our commitment that from AI to critical minerals, from semiconductors to cybersecurity, we shall create the future together. फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। यूके की 6 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोल रही हैं। पिछले हफ्ते ही भारत के गुरुग्राम शहर में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ है। Friends, in the field of education too, we are writing a new chapter together. 6 universities of the UK are opening their campuses in India. Just last week, the University of Southampton inaugurated its campus in the city of Gurugram in India. फ्रेंड्स, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms
to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी. Friends, we thank the Prime Minister and his government for strong condemnation of the terrorist attack in Pahalgam. We are united in the belief that there is no place for double standards in the fight against terrorism. We also agree that the forces which espouse extremist ideologies should not be allowed to misuse democratic freedoms. Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held to account. Our security agencies will continue to enhance cooperation and coordination on matters such as the extradition of economic offenders. Friends, इंडो-पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं. हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं. सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है. आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है. Friends, we have continued to exchange views on peace and stability in the Indo-Pacific, the ongoing conflict in Ukraine, and the situation in West Asia. We support early restoration of peace and stability. Respect for sovereignty and territorial integrity of all countries is essential. Today's era demands development, not expansionism. Friends, पिछले महीने अहमदाबाद में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों में कई यूके के नागरिक भाई बहन भी थे. उनके परिवार वालों के प्रति हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं. यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं. They did not just bring curry from India, but also creativity, commitment and character. इनका योगदान सिर्फ यूके की समृद्ध इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूके के कल्चर, स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विस में भी दिखता है. Friends, last month in the unfortunate plane crash in Ahmedabad, our sisters and brothers of the UK were among those who lost their lives. I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. The people of Indian origin in the UK form a living bridge that connects our two nations. They did not just bring curry from India, but also creativity, commitment, and character. Their immense contributions are not just limited to UK's prosperous economy, but are also visible in UK's culture, sports, and public service. Friends, जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है. फॉर बोथ ऑफ अस, cricket is not just a game, but a passion, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring सॉलिड पार्टनरशिप. आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है. Friends, I would be remiss not to mention cricket when India and the UK are coming together, especially during a test series. For both of us, cricket is not just a game, but a passion. And also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building
a high-scoring, solid partnership. The agreements concluded today and Vision 2035 are milestones which advance this very spirit. प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं और आशा करता हूं कि हमें शीघ्र ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister, I thank you once again for your warm hospitality. I would also like to take this opportunity to extend an equally warm invitation to you to visit. तो भारत और ब्रिटेन के बीच ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वो ऐतिहासिक अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच हो चुका है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा विशाल से ही जानते हैं। विशाल, आखिरकार वो ऐतिहासिक समझौता हो गया जिसके जरिए दोनों देशों को जबरदस्त फायदा होगा आर्थिक जगत में। बिल्कुल, देखिए, भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता है, बहुत ही ऐतिहासिक समझौता कहा जाएगा, क्योंकि इससे दोनों ही देशों के व्यापार में जबरदस्त बढ़ावा देखने को मिलेगा। और बीते 3 सालों से लगातार एफटीए पर दोनों देश बातचीत कर रहे थे। 6 मई को सहमति बनी थी और आज 24 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की मौजूदगी में एफटीए का साइन किया जा चुका है, हस्ताक्षर हो चुका है। और इसका फायदा क्या होगा? भारत की खासतौर पर जो फुटवियर, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्री है, उनको बड़ा फायदा होने वाला है। 90% तक उत्पादों पर टैरिफ खत्म होगा इस एफटीए के माध्यम से। इसके अलावा जो भारत का निर्यात है वो बहुत ज्यादा अब बढ़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे कृषि से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं जिन पर टैरिफ को कम किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, जेम्स की बात कर लें, सी फूड्स की बात कर लें, इन सब पर टैरिफ बहुत कम कर दिया गया है। आप ये कह सकती है जीरो भी कई बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को किया गया है। तो इससे निर्यात बढ़ेगा और भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूके में बड़ी संख्या में आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ यूके की जो विस्की है, यूके की जो महंगी कारें हैं, उन पर रेट कम कर दिया गया है, उनका टैरिफ कम कर दिया गया है। तो भारतीय बाजार में चाहे हम जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लें या जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात कर लें, ब्रिटेन से जो भारत आते हैं उन पर भी टैरिफ कम किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। और एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक 120 अमेरिकी बिलियन डॉलर तक ये पूरा व्यापार पहुंच सकता है। इस तरह की जानकारी अभी मिल रही है और यह कहा जा सकता है कि दोनों देशों ने काफी लंबे समय तक इस पर बातचीत की। 2000 पन्नों का एफटीए ये साइन किया गया है। अलग अलग सेक्टर्स को इसमें बड़ा फायदा होने वाला है, चाहे वो भारत का एमएसएमई सेक्टर हो या भारत के यूथ की हम बात करें या सर्विस प्रोफेशनल्स की बात कर ले, क्योंकि अभी सामाजिक सुरक्षा का जो इसमें क्लॉज है उसमें अब अगर कोई इंटर कंपनी ट्रांसफर या आईसीटी लेता है, मान लीजिए भारत से वो ब्रिटेन में काम करने आता है, तो उसे 2 जगह अपना पीएफ और इंश्योरेंस नहीं कटवाना होगा, यानी डबल सैलरी कट नहीं होगी, वो एक जगह ही सैलरी कट होगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिससे भारतीय लोगों को इस एफटीए से बड़ा फायदा होने वाला है। और खासतौर पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ नीति को लेकर, बहुत जगह उनकी आलोचना हो रही है, बहुत जगह बहुत सारे देश अभी भी बातचीत कर रहे हैं, भारत के साथ भी अमेरिका की बातचीत एफटीए को लेकर चल रही है, उन सब के बीच में यूके के साथ एफटीए होना और यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए की बातचीत इस साल के अंत तक फाइनल होना संभव बताई जा रही है। भारत